على محمد وآله أما بعد الحمد لله معزز حاضرین اور یہ مجمع پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معزز صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار پر ایمان رکھنے والے تمام افراد یہاں پر موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، یہ دن کی عظیم شہادت ہے، اور امام حسین کی شہادت خود امام حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ نبی کی شہادت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر نبی کا ذکر ہے، امام عالی مقام کا تذکرہ نبی کا تذکرہ ہے۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ محدث نبی صاحب نے لکھا ہے۔ پھر وہ شہادتیں جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معصوم نبی کو کچھ چیزوں سے نوازا، جیسے ایک شہادت کا رتبہ بڑا عظیم رتبہ ہوتا ہے، یہ نبیوں کو رتبہ اللہ نے دیا ہے۔ اور شہادت ہوتی ہے دو طرح کی، پہلی شہادت ہے کہ جو زہر کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور دوسری شہادت ہے جو تلوار کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ لہذا کوئی نبی زہر کے ساتھ شہید ہوا تو کسی کو تلوار کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اب ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ساری فضیلتیں اور ساری اچھائیاں اور سارے خصائص اور صفات حمیدہ عطا فرمائے ہیں۔ انہی صفات حمیدہ میں سے ایک شہادت بھی ہے۔ اب یہ شہادت پیغمبر کو تو نہ مل سکی، معزز صاحب کہتے ہیں شہادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مل سکی، تو اللہ نے چونکہ دو طرح کی شہادت تھی، دونوں شہادتیں ایک ساتھ دی نہیں جا سکتی تھی، زہر والی شہادت تھی اور دوسرے تلوار والی شہادت تھی۔ اللہ نے یہ طریقہ نکالا کہ ان دونوں شہادتوں کو دو بیٹوں کو دے دیا، یعنی ایک شہادت جو زہر والی تھی وہ امام حسن علیہ السلام کو دی کہ جو نبی کی طرف سے شہید ہوئے، اور دوسری شہادت آپ کے دوسرے بیٹے آپ کے چھوٹے فرزند امام حسین علیہ السلام کو تلوار والی شہادت دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب حسن کی شہادت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی شہادت ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہاں آپ کے مجموعے میں کھڑے ہو کر بتانگے دول اور بلند آواز سے یہ اعلان کریں، محدث نبی صاحب کا نظریہ یہ ہے پیغمبر کو جو شہادت ملنا تھی دو شہادتیں بیک وقت ایک آدمی کو نہیں مل سکتی تھی، اللہ نے ان کو ڈیوائڈ کیا، تقسیم کیا، منقسم کیا، دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک چھوٹے نواسے کو دے دی، ایک بڑے نواسے کو دے دی۔ یعنی نبی کی شہادت حسن کے پاس ہے، نبی کی شہادت حسین کے پاس ہے، یا جملوں کو بدل کر ایسے کہہ دیجئے حسن کی شہادت نبی کی شہادت ہے، حسین کی شہادت نبی کی شہادت ہے۔ اب میں آگے پڑھ کر اگر ایک جملہ کہوں کہ حسن کا قاتل نبی کا قاتل ہے، جب شہادت حسن کی نبی کی شہادت ہے تو حسن کا قاتل محدث دہلوی صاحب نبی کا قاتل ہے، حسین کا قاتل نبی کا قاتل ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتلائیے جو کوئی نبی کے قاتل سے پیار کرے مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کربلا کا واقعہ ایک کو قتل ہونا تھا، ایک نے قتل کیا، ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، آئیے اگر اس طریقے سے کہہ کے کربلا کے واقعے کو ختم کر دیا جائے، یہ تو ہونا ہی تھا، قتل ہونا ہی تھا، ہو گئے، ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے۔ اگر ایسے اس واقعے کو ختم کر دیا جائے تو میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے کے چلتا ہوں، سارے واقعات ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ مثلاً اس کی جو جناب آدم کے سامنے آیا، ابلیس اس کی کوئی غلطی تھی، واقعہ ہونا تھا، ہے نا، ہو گیا، آپ آگے بڑھیے۔ نہ جناب موسیٰ کے سامنے جو فرعون آیا اس کی کوئی غلطی تھی، ہے نا، نہ ہی جناب ابراہیم کے سامنے جو نمرود آیا اس کی کوئی غلطی تھی، اور نہ ہی رحمت للعالمین کے سامنے 80 جنگیں لڑنے والا ابو سفیان آیا، اس کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو جتنے بھی دشمنان متقین ہیں کسی کی کوئی غلطی نہیں۔ اگر کربلا میں چشم پوشی کرنی جائے تو ہر جگہ سے چشم پوشی آپ کو کرنا پڑے گی۔ کربلا ہی نہ کر کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو ہونا تھا، جا کر اس پر کیوں لانے سے پڑھتے ہیں آپ؟
सारी कायनात से लानत आप पढ़वाते हैं। कुरान मजीद ने भी लानत पढ़ी है किसके ऊपर? इब्लीस के ऊपर, शैतान के ऊपर, इसलिए कि आदम के मुकाबले में आया। आदम कौन है? आदम वो है जो रहमतुल लिल आलमीन के पसीने से पैदा हुए, और हुसैन कौन है कि जिनकी रगों में नबी का लहू है, नबी का खून है ना। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है जिलाल मोहतरम। नबी की आगोश के पाले हैं हुसैन। आप देखिए तो सही जुमला हमने परसों की तकरीर में भी कहा था। मैं आज अर्ज करना चाहता हूँ, इतने मेरे मुसलमान भाई हैं, ये वक्त क्यों हो रहा है? अभी असर का वक्त होने वाला है। सन 61 हिजरी में 4 बज रहे हैं, अभी 1 घंटे के बाद असर का वक्त हो जाएगा। सन 61 हिजरी में मुसलमानों यही टाइम था जिस वक्त आपके नबी के नवासे के खुश्क गले पर खंजर चला दिया गया। ये टाइम था बिल्कुल। 1 घंटे के बाद वही असर का वक्त हो जाएगा जब सारी मस्जिदों से असर की अजान की आवाज बुलंद हो, तो हर मस्जिद से आज जो अजान की आवाज बुलंद होगी ना, अल्लाह अकबर का मतलब ये होगा हुसैन तेरा शुक्रिया, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ये होगा हुसैन तेरा शुक्रिया। इसलिए कि अपनी जान बचाने के लिए, अपने को मुसलमान साबित करने के लिए नमाजें पढ़ना कमाल नहीं है, अपने आप को फना करके नमाजों को बचा देना कमाल है। किसी शायर ने क्या बोला? बचा गया इसे सजदा हुसैन का, वरना नमाज असर से पहले ही मर गई हो। मैं 2 मंजर मुख्तसर तौर पर पेश करूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं जुलूस ना निकले, ये काले लिबास, ये काले कपड़े पहनकर जो निकले हैं लोग, ये ना निकले। इसलिए कि हमसे पूछा जाता है काले कपड़े क्यों पहने, तो हम बतलाते इमाम हुसैन शहीद हुए। का इमाम हुसैन कौन थे? का नबी के नवासे थे। का किसने मारा है? का यजीद ने कत्ल कराया है। का यजीद कौन था? पूछा जाता है। का हाकिम शाम का बेटा, हाकिम शाम, उसको हाकिम किसने बतलाया? और दूर तक बात जाती है इस्लाम मोहतरम, है ना। जब सवाल पर सवाल होता है तो इसीलिए लोग डरते हैं कि कोई सवाल यहाँ से बाहर न जाने पाए, जुलूस ना होने दो, आजादारी ना होने दो, मजलिस ना होने दो। क्यों रोका जाता है? असल में अगर कहीं कोई आदमी कत्ल हो जाता है तो अब 2 तरह के गिरोह होते हैं। 2 गिरोह है, एक कातिल का गिरोह, एक मकतूलीन का गिरोह। कातिल कत्ल करने के बाद छुपा छुपा देखता है, मकतूल के घर वाले, मकतूल तो मर गया लेकिन उसके बाद इनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब जिम्मेदारी क्या है? ये अदालत में जाते हैं, अदालत में जाने के बाद हर उस एविडेंस को पेश करने की कोशिश करते हैं कि जिससे इसकी मजलूमियत साबित हो जाए और दुनिया को पता चल जाए कि हमारा जो कत्ल हुआ है वो मजलूम मारा गया है। लेकिन कातिल के जो रिश्तेदार होते हैं और उसके पैरोकार, उनकी कोशिश क्या होती है? उनकी कोशिश ये होती है कोई एविडेंस सामने ना आने पाए, छुप जाए, खत्म हो जाए, कोई भी एविडेंस बाहर ना निकलने पाए। हम जो ये अलम देख रहे हैं ना, इसमें पंजा देख रहे हैं, सुलझना आप देखते हैं, हमारा ताबूत आप देखते हैं, सुलझना के ऊपर सजाए गए तीरों को देखते हैं, लटकाई गई तलवारों को देखते हैं, नेज़े हमारे साथ में देखते हैं। ये हुसैन की शहादत के एविडेंस है जो हम हर साल लेकर निकलते और दुनिया को ये बतलाते कि हम तो दुनिया को पहचानवाना चाह रहे हैं हुसैन का कातिल कौन है। अब जो भी हमें रोकेगा वो यजीद का हामी होगा, कातिल का हामी होगा। और लोग हमें कहते हैं तुमने मारा, कैसी बात कर रहे हो? जो मारता है वो रोता नहीं है, जो मारता है वो खर्च नहीं करता पैसा, जो मारता है वो अपनी जान नहीं गंवाता है, जो मारता है अपनी बच्चों की कुर्बानियां नहीं देता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला करबला के मैदान में वो सुन लीजिए। और एक बात और, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अकबर को खोने के बाद, अली असगर का लहू चेहरे पर मलकर जनाब अब्बास की शहादत के बाद यकाउत तनहा मैदान करबला में खड़े बोले अशकिया के सामने आए। आने के बाद पूछते हैं, और लोगों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ये बताओ मुझे क्यों मार रहे हो? क्या मैंने अपने नबी का दीन बदल दिया? क्या नहीं हुसैन, तुमने दीन नहीं बदला, मैंने कलमा बदल दिया, तुमने कलमा नहीं बदला। हलाल को हराम किया, क्या नहीं हलाल को हराम नहीं किया, हराम को हलाल किया, क्या नहीं हराम को हलाल नहीं किया। कभी क्यों मानना चाहते हो? बस एक जुमला सबकी जबान से निकला, तो हुसैन तुम्हारे बाप का दुर्द है हमारे दिल में। मुझे ये बताओ, शिया किसको कहते हैं? शिया उसको कहते हैं जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो, उसको नहीं कहते जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ हो। सामने कौन है? वो है जिनके दिलों
में आने का वो है जो जंगे सिद्दीन, बद्र में, ओहद में, खैबर में, खंदक में सब जगह मार खा चुके हैं, उनके वारिस खड़े हुए सामने। और हम कौन है? हमारी की मोहब्बत में अपनी जान पे निछावर कर देते हैं। तो वो नहीं है हमारे दिल में हमारी मोहब्बत, हमारे जैसी मोहब्बत को दिखाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे जवान, वो जंजीरें के जिनको आप देखते हुए भी डरते हैं, ये अपने आसानी से अपनी कमर के ऊपर लगा रहे, अपने सीनों पर मातम करें, हाथ का नहीं बलेर का मातम करें, ये ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं, ये हुसैन से मोहब्बत है, और जो मोहब्बत करता है वो कातिल नहीं होता है। एक मंजर हमने पेश किया कातिल मकतूल का, एक मंजर और मंजिल रहमत तमाम। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के वाली बने, हाकिम बने, अमीर बने, उनके भाई पहुंचे वहां। जब तीसरी दफा में वहां पहुंचे उनके भाई, सारे भाई कौन है? जनाब यूसुफ के अहले कुरान खड़े हुए, सब अफराद जानते होंगे। जनाब यूसुफ के भाई वो है जिन्होंने उनको कुएं में डाल दिया था, बहुत जुल्म किया, मारा पीटा भी था। ये चाह रहे थे बाप की नजरों से ओझल हो जाए किसी तरीके से। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे गल्ला लेने के लिए, है ना। तीसरी मर्तबा जब पहुंचे, जनाब यूसुफ ने उनसे कहा कि आज तुम मेरे साथ खाना खाओगे। यह उस दिन की बात है जिस दिन जनाब यूसुफ उन्हें बतलाने वाले हैं, है ना, कि मैं कौन हूं और तुमने पहचाना नहीं, मेरे ऊपर जुल्म किया। जनाब यूसुफ ने कभी बताया नहीं उनको। आज जनाब यूसुफ ने एक खुदरा तैयार कराया, चारों तरफ वही तस्वीरें बचपन की। जब जनाब यूसुफ 13 बरस के थे, एक बच्चा 13 बरस का, कुएं में डालते हुए, कुर्ता उतारते हुए, तमाचे लगाते हुए, वही तस्वीरें चारों तरफ लगी हुई है। भाई एंटर हुए और जैसे ही घर में दाखिल हुए और उस घर में जाने के बाद खाना रखा, दस्तरखान पर सब बैठ के खाना चुना गया है, खाना खाने वाले सब तैयार है खाने के लिए। भाइयों की नजर दीवारों पर मनकोश और नक्काशी शुदा उन तस्वीरों पर पड़ी। फौरन को खिला गए, देखने लगे। एक तस्वीर कुर्ता उतारते हुए, एक तस्वीर हाथों में रस्सी बांधते हुए, एक तस्वीर तमाचा लगाते हुए, एक तस्वीर कुएं में डालते हुए। जैसे ही ये तस्वीर देखी तो कहने लगे, यूसुफ हम इस कमरे में खाना नहीं खाएंगे, यूसुफ इस कमरे में खाना नहीं खाएंगे। कहा क्यों? इसलिए कि ये तस्वीरें हमें पसंद नहीं है, हमें पुराना जमाना याद आ रहा है। बस यही तो होता है जब हम अलम लेकर, जुलूस लेकर निकलते हैं, लोग कहते हैं हम ये देखना पसंद नहीं करते। हमें जमाना याद आता है जब हमारे अजदाद ने मारा था। वो नहीं चाहते उनके साथी कारस्तानियां उनको जो मना करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आप लोग मोहब्बत में जमा हुए इमाम हुसैन की, आप सब तो मोहब्बत करते हैं, आप रोकते नहीं है। कुछ लोग हैं कि जिस तरीके की हरकत करना चाहते हैं, लिहाजा जब तक हम जिंदा इमाम हुसैन की मजलूमियत का ऐलान करते रहेंगे और कायनात को बताते रहेंगे कि हम जनाब यूसुफ के तरफदार हैं, उनके भाइयों के नहीं है। इमाम हुसैन के तरफदार हैं, उनके भाइयों के नहीं। और हम ज़ियारत में पढ़कर कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह। तो हम इस तरीके से कहूँ इन जुमलों को हम बतलाते हैं आदम के तरफदार है, शैतान के नहीं, इब्राहिम के तरफदार है, नमरूद के नहीं, मूसा के तरफदार है, फिरौन के नहीं, हम हामानो, शद्दादो, कारून के तरफदार नहीं है। हम बतलाते हैं मोहम्मद अरबी के तरफदार है, अबू जहल और अबू लहब के नहीं। दुनिया पर वाज़ेह हो जाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लोग जमा, तमाम फिरकों के मेरा साथ देंगे इन नारों में जिनमें आप सब मुत्तहिद हैं। दोनों हाथ बुलंद करके सब कहेंगे नारे तकबीर। इन नारों में तो कोई परेशानी नहीं, इनमें तो सब मुत्तहिद है। सब मिलकर कहे उधर से उधर तक नारे तकबीर, नारे रिसालत।